Good afternoon, friends, and welcome to this session of Mindful Musings. And before I start the session today, I want to talk about a movie that I saw in the 70s. That movie had uh, as a hero a batsman called Salim Durrani. He was a very flamboyant uh, cricketer, a batsman who was perhaps made for T20. So he was clearly 4 decades ahead of his time. So, so he was so popular, he was so good looking, and he had swag. So, in fact, a film producer was so impressed with him that he cast him in a film with Parveen Babi, who used to be a big heroine then. और उस फिल्म का जो टैगलाइन था वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो क्या था ओके सो it went something like this if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost and if reputation is lost everything is lost okay and so today we are going to be talking about what many people consider to be your most precious asset which is reputation. How do you build one and how do you maintain one? So to do justice to the topic, we have with us Ashutosh Bishnoi. He's the MD and CEO of Mahindra Manulife. And I cannot think of anyone better than Ashutosh Bishnoi to talk about this topic. Why do I say that? Because Ashutosh has the right blend of consumer marketing and a financial services background. Friends, many of you may not know that he started his career actually in advertising. And he's handled some of the most prestigious brands, both from a advertising perspective and from a business perspective. Uh, in fact, he has also been the country head for one of the most iconic media brands of all time, Reader's Digest. And today, it is not surprising that, under his direction, Mahindra Manulife is a force, is an AMC, which strikes much above its weight. Okay. In fact, we carried out a survey recently where Mahindra Manulife as a brand scores much better than its bigger, more established, older rivals. And I attribute a lot of that to what Ashutosh Bishnoi has done. So welcome, Ash, to this session. And yeah, you told me that you had some slides to play, some introductory slides to play. So we're all looking forward to it. Thank you, Prem. I've known Prem for a very long time. I think from the beginning of time, as they say, beginning of time when mutual funds were just about beginning to come into their own, and I think a lot of credit to him and his marketing skills to get that concept going. And thank you, of course, for the introduction. Yes, I've had the privilege to work on some of the better brands in the country and in the world actually for many years, almost 17 years. So so a little bit about what I'll do is I wrote off some ideas, some thought processes, Great. and uh, and I'm going to share those. And these have to do mostly with how do you manage a reputation? Tell me if you can see the slides, please. Can you see the slide? It will start. It says you've started screen sharing, and I'm sure we'll be able to see it soon. Yes, we can see it. Okay, let me try and put it on the, Yeah. yeah. So as a marketing person, something I learned many years ago when I started my career in advertising is that reputation is something which should formally be addressed. And to call it a brand in those days was not even fashionable. But brand it is. What is a brand? It's a brand is a concept in people's mind. A lot of people talk about brands as if this as a product they're buying. But very simply put,
A brand is what people think they are buying in their mind, and a product is what manufacturer sells or a service provider provides us. So, so for example, and I'll take an example mostly out of consumer marketing because in that space, brands would define themselves better than financial markets. So take an example of a Nike shoe. I'm sure all of you, or many of you, would have owned, wanted to own, still want to own a good Nike shoe, a pair of Air Nikes, right? It's an interesting concept of a brand. Here is a brand which you are buying, thinking of it as the ultimate running or cross training shoe that you could find. It's a fact. It's extremely well engineered, and but somewhere in your mind, you're not buying its engineering. You're not buying its performance of the shoe vis-a-vis your running. You're buying a concept called Nike, which stands for excellence in sports, excellence in healthcare now increasingly. Somewhere in your mind, you're buying that and you're willing to pay a very, very high price to buy that versus something which will be very similar in its making and its construction that you can buy off the footpaths in Mumbai. It will not be branded, but it look very similar. It'll behave similarly, but you're not going to buy that. You're going to buy a Nike. And the interesting part about Nike is that Nike as a brand does not own a single manufacturing facility on its. The company does not own any manufacturing at all. It's all outsourced. It's completely outsourced. Okay. Each part of the shoe is created in some part of the country, some part of the world. Okay. Okay, elements come from all over the world in factories all over the world, made to the design precision of Nike, and that's how Nike is produced. Now think about that concept. No product that the company can say, I have this manufacturing capability and I have this line and this produces this fantastic thing. No. All that they can claim for is a mind space that they own in your mind. And that mind space is a brand. And it's a highly premium brand. That shoe on an average costs twice as much as its next competitor in most of the higher end. So that leads to the purpose of the brand. Why should you manage your reputation? Why should you have a brand? And that's an answer which is very simple to think about. From a purely commercial perspective, a brand is created out of your reputation, out of everything that people understand about you, so that you can charge a premium for your services or your product. That's the that's the central driving purpose of creating a brand. You should be able to position yourself, your service, your product more premium than your competitors. Now you may charge for the premium or you may not charge for the premium. That's up to you. But by and large, that's why a brand needs to be created. That's why you need to manage your reputation. And as we speak about reputation, what is reputation? A lot of people I meet and I talk about, well, what do you think is your reputation? And they will tell you how the good things they do, how they service the client better, or what a great team they have, what a nice office they have, and how their response time is the best, how the recommendations they make are the best. Well, yes, it is to an extent something that they're working with to create a reputation, but reputation is belief or opinions held about someone by other people. It is not what you think of yourself. Chances are what you think your reputation is and what everybody else think your reputation is, the gap may be wide. And therefore, it's not what you believe is your image, it's what other people is your image. And sometimes it is a very good thing to do to shake yourself out of the comfort zone to think that, hey, I am doing well, I have a good reputation, everybody thinks well of me, I have this business. Sometimes it is good to shake yourself out of it and find out what really is your reputation. What do other people think of you, right? And what do you mean by other people? So do this, for example. Ask all your clients, all, okay? Because that will include the clients who are not happy with you, okay? All your clients, send them a simple query. Now you can do this online very quickly, use a survey monkey or something. On a 5-point scale, they can tell you, where do they rate you? And if you're not getting 4s and 5s, you should ask, what is it that they don't get from you that they get from somebody else or from nobody?
They may not be getting it from somebody else. It may be something they want, but they're not getting it from anybody, including you. Always ask people who left you. If you're running a small team also, people who leave you, ask why they are going somewhere else. You may let them go, but at least at that point in time, people tend to be very honest about why they are going. You may learn something new about your company, about yourself. You may find that it's not very palatable. You may even say, "Huh, this guy is talking nonsense." Maybe so, but to ask. Sometimes you find nuggets of wisdom from people who leave you. Ask your landlord if you rent a premises. How does he rate you as a tenant? He's got nothing invested in you except that you rented something from him. He's not your friend. He's got a commercial deal with you. And I can tell you, if he gets a better commercial deal, he'll ask you to leave, right? So ask people who do not have anything much in personal relationship with you. Clients only, because if you have not never asked your client what you are doing wrong, clients feel unhappy. Clients will always tell you, well, somebody else can give me better service. So clients always, but other than that, do not ask your family, do not ask your friends. They are terrible feedback givers. They will always tell you what great work you're doing, right? They'll always say, no, no, you're great, you're doing a great job, you're a good friend, all that. Always ask people who are not necessarily very interested in what you do. So that is, somebody who's leaving you, a tenant, if you are your landlord, or even a tenant if you're renting to somebody. Make a list of all such things that upset you about your work. Yeah, I'm sure from time to time all of us lose our temper, right? Make a list of things that make you lose your temper. It could be your work, your workplace, your co-workers, clients, principals. Make a small notebook and write down at the end of each day all the occasions you had to raise your voice. And I can tell you, those will be the ones which are problem areas in your reputation. Those are the ones where reputation is suffering, and you recognize it subliminally, you lose your temper with it. But what did you do about it is the question. Get a caricature artist to make your sketch. And I tried this. I don't have the caricature with me, but I have a couple of others. Caricature artists have a tremendous sense of capturing the essentials of how you look. And that's a very important part of your brand. How you come across, what's your presence. So I'm going to give you two examples. You can see on the right, my boss, right? Mr. Anand Mahindra. Unmistakably, these are the two people. You cannot mistake them for anybody else. Mr. Tata, Mr. Mahindra, right? Look at the features on their face. It captures the essence of their personality so nicely. So if you have a good caricature artist you know of, ask him to make your caricature and look at it carefully to say, okay, what is missing over here? Look at Mr. Tata, he's smiling, right? That's how you always see him. Because look at Mr. Mahindra, he's got a glint in his eye. Even in that caricature, he's got the wry glint in his eye, right? That's how you see him all the time. So somebody does a good job of capturing your face. Get it done. Look at it carefully. Think about what you need to fix. Or if you're fine with it, that's great, right? Define or redefine who you are based on the feedback. Attempt to write an identity statement about yourself. Who are you? What do you stand for? What's the mission you got out to do as a business? The mission could be as simple as I want to make the most amount of money by making investment for my clients. But if you state it, write it down so that you never forget and don't let anybody who works for you forget that that's the mission. What makes you different from the others? Write what you think you set out to do in your business when you started the business. It was a while ago, but today you are at a different point. The difference don't have to be qualitative. How you are different can be purely geographical. I am the best mutual fund distributor or financial advisor or financial consultant in Santa Cruz West. Well, that's good enough. That's a differentiator, right? I'm the best that there is, or I want to be the best there is in the community of Marwadis or in the community of XYZ, whichever you think is the community you work in. And the community doesn't need to be defined by by a name. It can be by a geography. It can be by in my housing society, right? It could be that. It could be language based. I'm the best that there is. और मैंने कोशिश भी की है. I know that I'll talk about me.
It could be language based. It could be कि I will do best business for people who are 50 plus or people who are below 30. You can define who you are, but writing it down is critical. Why is it important? Because once you define कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, that becomes the basis of what you will offer and what that builds trust. Reputation is important because trust depends on reputation, and reputation is all you've got. जैसा प्रेम ने कहा that once reputation is lost, all is lost. It is the basic commodity of our business. When we go and talk to our clients, जब भी हम client से बात करते हैं, it is there is a basic understanding of trust. वो गया तो सब गया, लेकिन is trust enough to get you more business? By itself, it may not be enough because people trust so many things, right? I mean, you trust if tomorrow you have to leave this country and go away because you have to go away, who will you trust your money to? Will you trust it to the financial advisor, or will you trust it to your wife or your son or your brother, and they may know nothing about finance, right? So trust is many layered. Trust comes from familiarity, from knowing people well, having worked with them closely. So you and many people can reach there. Many people can be trusted by a person, but you need to differentiate कि आपके पास वो क्या यूनिक चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, जो कि आपके क्लाइंट को चाहिए. It needs hard work. Many times you may not come up with an answer. You may feel कि some of my competitors also offer, which is good enough. At least you have narrowed the options. कि अगर आपकी सर्विस आपके 4 कॉम्पिटिटर्स से जैसी है, तो इट इज बेटर देन आपकी सर्विस आपके 1000 कॉम्पिटिटर्स जैसी है, राइट? एटलीस्ट यू आर फाइटिंग इन द फोर. ये क्यों जरूरी है अपनी रेपुटेशन डिसाइड करना? क्योंकि इट डिफाइंस योर बिजनेस ट्रैजेक्टरी. आप क्या करेंगे, आप किस क्वालिटी का बिजनेस करेंगे, आपके सारे कोवर्कर्स, आपकी टीम, आपके क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट करें आपसे. एक एग्जांपल देता हूं. Personal branding statement. A focused and determined business leader, I offer entrepreneurial stamina and wisdom to drive bottom line growth, lucrative business, inspire employees, peak performance, cultivate profitable relationships. My easygoing sense of humor has been a defining management strategy to bring out the best in everyone. There is the differentiator. बहुत simple सी चीज है. It doesn't have to be something complicated like I can do transaction faster, I can give better advice. People tend to focus on that only. Very personality is easygoing and I have a sense of humor. That is a personal branding statement which can win you clients. इस तरह से सोचिए. सिर्फ इतना नहीं सोचिए कि मटीरियली क्या डिफरेंट है मेरे बारे में, कि मैं फंक्शनली क्या बेटर कर सकता हूं. बट फंक्शनली इज ऑल्सो गुड. फिटबिट का एक मिशन स्टेटमेंट, फिटबिट यू ऑल नो, पीपल वेयर दोस things to measure different things in their walking, running, to empower and inspire you to live a healthier, more active life. We design products and experiences that fit seamlessly into your life so you can achieve your health and fitness goals wherever you may be or whatever they may be, right? सिंपली लिखा है लेकिन सोच के लिखा है कि हम क्या करते हैं, क्या डिलीवर करेंगे. ऐसा कुछ लिखिए अपने बारे में. Let it be unique to you. Take the help of your friends and family to write this piece. But don't take their help to find out what your reputation is. वो हमेशा गलत बताएंगे, वो हमेशा अच्छा ही बताएंगे. आपको वो ढूंढना है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं लोग, और उसे ठीक करना है. क्या क्या सोचना चाहिए? What all you must consider? What are your skills? What's your attitude and personality? Yes, of course, expertise is there. वो बहुत लोगों के पास होता है, because expertise can be learned. Accounting and financial expertise सीख सकते हैं. So personality you cannot learn. It is your own. Attitude you cannot learn. It is your own. Skills are physical skills. आप किस चीज में माहिर हैं? Those are things which are personal and try to use those. आपके बारे में जो मालूम है लोगों को उसे यूज करिए. What do you stand for? What is the mission of your life? But कई ऐसी चीजें होती हैं. Many things are there. People may not know about you. Like आपको example दिया that I have a great sense of humor. Now people may think of it like that, but किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में बहुत ध्यान से कि अरे this man cracks good jokes. क्या है आपके बारे में which is unique? These are the things to consider. Try to set some rules also. कि मेरे personal brand में हम हमेशा, these are examples. You don't have to follow this, but these are examples. I will always be polite.
नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन। बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होता है, मैं ऐसा रूल नहीं सेट कर सकता हूँ कि आई विल ऑलवेज बी पोलाइट, कहीं ना कहीं तो पारा चढ़ ही जाता है ना। तो बट सेट रूल्स दैट यू वांट टू फॉलो, दैट यू कैन फॉलो। आई मस्ट ऑलवेज बी फर्स्ट विद द बैड न्यूज। मेरे ब्रांड में ये रूल है। मैं समझता हूँ कि इफ आई हैव अ बैड न्यूज टू डिलीवर इवन अबाउट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ माई प्रोडक्ट्स, आई वांट टू बी फर्स्ट आउट देयर एंड टेल पीपल कि भैया देखो यहाँ नहीं हुआ है, बैड न्यूज मेरे बारे में आई शुड डिलीवर फर्स्ट। That is a great indication of integrity. Never lie to client about any question asked, no matter how rude or difficult the question. झूठ नहीं बोलना है. There must be first. These are the things that build trust and build up. These are just examples. I'm not saying you have to follow these ones. About your business, about your role, about your person, there will be certain things. For example, you can always make a rule saying that always in any first conversation, I will try to crack a joke. उसके लिए क्या लगेगा, बहुत सारे जोक की फैक्ट्री लगेगी आपको, वो देखना पड़ेगा, आपको संभाल के रखना पड़ेगा। मैंने किया है ये। When I was in advertising, I used to do this. I used to keep a whole bunch of jokes. Fortunately, मैं Reader's Digest में था तो जोक्स की कमी नहीं होती थी मेरे पास। But I made that a rule of my brand कि I will always crack a joke. I will always tell a nice story. So that people remember you और आए कि अरे यार ये अच्छी बात करता है, ये कोई इंटरेस्टिंग बात बताता है जब मिलता है। ब्रांड गेट्स बिल्ड इन एवरी इंटरैक्शन, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग कर दिया, आपने एक पोस्टर बना लिया, आपने एक मेलर भेज दिया या आपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दिया, उसमें ब्रांड होता है। नहीं, उसमें होता है, उसमें तो प्रॉमिस होता है ब्रांड का, लेकिन डिलीवरी ऑफ द ब्रांड प्रॉमिस हैपन्स इन अ पर्सन। जब आप किसी से मिलते हैं तब उससे समझ में आता है कि इसके ब्रांड के बारे में पढ़ा था मैंने कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, मिलकर भी यही लगा। अगर मिलकर ऐसा लगेगा कि बहुत बोरिंग है तो ब्रांड का क्लैश हो जाएगा, तो वो क्लैश मत होने दीजिए। रिमेंबर एवरी इंटरैक्शन, नो मैटर हाउ स्मॉल, पर्टिकुलरली विद योर क्लाइंट, लीव्स एन इम्प्रेशन। वो एक रेजिडुअल इम्प्रेशन रह जाता है, उस पर ब्रांड बनता है। योर टीम ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो डिलीवरी वैसा ही होना चाहिए हर बार। बिहेवियर मैटर्स मोस्ट। पीपल जज यू बाय योर बिहेवियर फर्स्ट एंड देन बाय व्हाट यू से। आप बोलते हैं उससे कम जजमेंट होता है, लेकिन आप जो करते हैं उससे जजमेंट ज़्यादा होता है। 3 एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। पर्पस की बात की हमने, पर्सनालिटी की बात की, पोजीशन कहाँ से आती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से के दायरे में, इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल योर कॉम्पिटिटर्स, वेयर आर यू पोजिशन्ड इन योर क्लाइंट्स माइंड? That is position. So purpose, position and personality of a brand are very important to decide. इसके some quick steps, जैसे मैंने कहा, डिफाइन करिए who you stand for, write down your values, learn to share your knowledge. बहुत लोगों को ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में संभाल के रखिए, उसमें एक हम आईपी बनाएंगे, उसमें पेटेंट बनाएंगे, वो सब बकवास है। इन पर्सनल ब्रांडिंग, द मोर नॉलेज यू शेयर, the more knowledge you get in return, and every time people interact with you, they learn something new, because you have been sharing, people share with you freely. Don't worry कि मेरा ये आइडिया कोई कॉपी करेगा, करने दीजिए ना, आइडिया इज योर्स। फाइनली पीपल रियलाइज कि कहाँ से आइडिया आ रहा है। जिसके पास आइडिया होता है उसके पास आइडिया की कमी नहीं होती है। सो डोंट वरी अबाउट शेयरिंग, जस्ट रिलेंटलेसली शेयर नॉलेज। स्पीक अप, मतलब बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन अपने बारे में जो ब्रांड का प्रॉमिस है उसे कहते ही रहिए, उसे कहना मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि अभी कितना कहें, कितना भी कहें कम है। हाउ मच सो एवर यू मे स्पीक अबाउट योरसेल्फ व्हेन अ ब्रांड इज लेस, बिकॉज रिमेंबर योर क्लाइंट एंड योर टारगेट कस्टमर हैज गॉट मिलियंस ऑफ पीपल रीचिंग आउट टू हिम सेइंग व्हाट देयर ब्रांड इज अबाउट। आप चुप हो जाएंगे, सो देन यू विल गो डाउन इन द कंसिडरेशन लैडर। वो आपके बारे में सोचना छोड़ देगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैसे, हाउ ह्यूमन बींग्स लर्न, आप बचपन से कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आपने एग्जाम पास किया, बार बार किताब से बार बार आंसर लिख के, बार बार उसको रट्टा करके, बाय रोट, मेमोरी बाय रोटेशन। मेमोरी बाय रोट से हम लर्न करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दैट। सो डोंट लेट पीपल फॉरगेट एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। ऐसा मत सोचिए कि मुझे सब मालूम है। ऑलवेज लुक हु कैन टीच यू व्हाट। सो मेरा इसमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ। हाउ डू आई लर्न मोर? बहुत डिफिकल्ट होता है ना, वंस यू बिकम CEO एंड MD, पीपल थिंक यू हैव ऑल द आंसर्स।
बट यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स, यू हैव टू फाइंड आंसर्स. सो मैंने बहुत पहले एक रूल एस्टेब्लिश किया था अपने बारे में अबाउट माई ब्रांड, दैट इफ एवर आई हायर पीपल, आई विल ओनली हायर सच पीपल हु आर स्मार्टर देन मी. ये बहुत सिंपल रूल है, बहुत डिफिकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब कोई आता है ना, इसको आप हायर करने वाले होते हो, एंड दैट पर्सन इज वेरी अग्रेसिव, वो ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज बोलता है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि अरे इसको कैसे इतना सब मालूम है, यू फील कि अरे ये तो चलेगा नहीं, इसके साथ तो झगड़ा होगा. हायर दैट पर्सन, बिकॉज he is going to add to your learning, and he's going to, by adding to your learning, and he'll add to your business. Hire people जिनके प्रेजेंस में यू फील थ्रेटेंड कि यार इसे तो बहुत मालूम है, मुझसे बहुत ज़्यादा मालूम है. Hire those people because they will build your business, they will help you to build your brand. And when building brand, create memory hooks. यानी आप, you should create certain lines about yourself. मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको आगे. एक एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप किसी को, यू मीट समबडी इन एन एलिवेटर एंड ही आस्क्स यू, सो व्हाट डू यू डू, टेल मी. यू हैव मे बी less than 25 seconds, depending on which elevator you're going in, to tell somebody what you do. उस पे उसे पॉलिश करिए. वो 10 वर्ड का एक सेंटेंस कि मैं क्या करता हूँ, उसे पॉलिश करिए, उसे रिपीट करते रहिए जहाँ भी जो भी मिले. सबसे पहले बोलिए दिस इज व्हाट आई डू, so that people are clear. वो लाइन आप, आपके एम्प्लॉयज, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके क्लाइंट्स, सबके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये आदमी ये करता है. एलिवेटर पिच इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इसे लिखना. 4 सेंटेंस लोग लिख सकते हैं, 1 सेंटेंस लिखने को बहुत तकलीफ होता है, आई कैन टेल यू, बट ट्राई इट आउट. इट हैज टू बी डन, नो मोर देन 10 वर्ड्स. उसमें सब आपका आ जाना चाहिए, स्किल, स्ट्रेंथ, वैल्यू, क्रेडिबिलिटी, सब उसमें डाल दीजिए, एंड देन कीप रिपीटिंग इट. तो वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी हो जाएगी. विजन, जो आपने क्या है, आप सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, या ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका कमिटमेंट क्या डिफरेंट है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, ऑल टुगेदर दिस मेक्स योर ब्रांड आइडेंटिटी. इसे बनाइए. ये आप अगर किसी अमेरिका में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलेंगे ना, उसके पास 4 ऐसे मेमोरी हुक्स होंगे जो कि लोग याद करते हैं. सो टेक फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने कंपनी का नाम कुछ भी रखा, सनशाइन. आप अपने एजुकेशन पैकेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जैसे अभी आप आज बेचते होंगे महिंद्रा म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड, वो ठीक है, यू क्रिएट योर ओन ब्रांड, नो, कि आपकी कंपनी का नाम समझिए सनशाइन है, सनशाइन एजुकेशन पैकेज. उस पैकेज में 3 SIP हैं और हर 6 महीने में SGB, सर्वेंट गोल्ड बॉन्ड का परचेज है. ये पैकेज है, ये आपका पैकेज है, दिस इज योर ब्रांड. ये एक्सिस का नहीं है, ये महिंद्रा का नहीं है, अपना ब्रांड बनाइए. स्प्रिंग टाइम समझिए आपकी कंपनी का नाम है, उसका रिटायरमेंट पैकेज, उसमें 3 SIP हैं, 2 FD भी हैं, एक RBI का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी है. वो पैकेज बनाइए ना, उस पैकेज को नाम दीजिए. दैट इज ब्रांडिंग. यूज ब्रांडिंग टू योर एडवांटेज. यूज द फ्री मीडिया. लोग सोशल मीडिया कहते हैं, मैं बोलता हूँ फ्री मीडिया है. मैं मीडिया का पब्लिशर रह चुका हूँ. इतना डिफिकल्ट होता है टू ओन मीडिया इन दिस कंट्री. नाउ विद द हेल्प ऑफ वन फोन यू कैन ओन ऑल द मीडिया दैट यू वांट. आप जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे पब्लिश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है आपको. फिर आपके ऊपर है कि कहाँ तक पहुँचाना है उसे. लोग इतना इस्तेमाल करते हैं. आपके पास व्हाट्सएप में 90% ऑफ द मैसेजेस आर मैसेजेस डिलीवर्ड बाय पीपल हु वांट यू टू नो व्हाट दे स्टैंड फॉर. करेक्ट नो? जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजियस पार्टी हो, जो कुछ भी हो, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम शार्पली हो. कितना स्मार्टली करते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, क्या क्या करते हैं. आप भी कर सकते हैं. यू कैन डू दिस, इज अवेलेबल टू यू. कोई नहीं बोलता है कि आपको लाइसेंस चाहिए अभी व्हाट्सएप में पब्लिश करने के लिए. रीडर्स डाइजेस्ट में जब मैं पब्लिशर बना था ना, मेरे को वो बॉम्बे में और दिल्ली में आई हैड टू गो टू द पुलिस ऑफिस, टू द पुलिस कमिश्नर ऑफिस, बिकॉज हमारे यहाँ एक लॉ है कि अब इफ यू मेंबर ऑफ द प्रेस एंड पब्लिशर, नो, यू आर लायबल कि आपके किताब में लिखा क्या है, आपके मैगजीन में क्या लिखा है, किसने, उसके बारे में आपको लायबिलिटी है. सो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन इन दिल्ली एंड बॉम्बे, पुलिस स्टेशन में जाके. अभी व्हाट्सएप में कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, जो चाहिए पब्लिश करिए. मेमोरी हुक्स की बात की मैंने, देखिए मैंने लिखे हैं यहाँ. इस तरह के मेमोरी हुक्स आप अमेरिका में किसी भी एनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टर, एडवाइजर से बात करेंगे ना, उसके 4 ऐसे होंगे. विनिंग वेज पैकेज, फर्स्ट टू मार्केट पैकेज, एवरीथिंग म्यूचुअल फंड्स पैकेज,
एडुपैक पैकेज, रिटायर रिच पैकेज, ये सब उन्होंने हैशटैग बना के धनाधन ट्विटर में डालते रहते हैं. यू नीड टू डू दिस. दिस हैव टू बी आइडेंटिफाइड विद योर ब्रांड. उसमें अपने ब्रांड का नाम डालिए और आगे डालिए, जो कुछ भी नाम है आपका, whatever the name of your company. Shreyan's Winning Ways, right? Efficient distributors, EduPack, जो कुछ भी नाम, just you need to do this. This is called branding. एक जरूरी बात कहूंगा, ये वर्ड आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा. Stick to itiveness. सिंपल है. It means what it says. Stick to it. ये एक्चुअली इट इज इंग्लिश वर्ड, आप जानते नहीं होंगे. इट इज देयर इन द कौन सी भी डिक्शनरी में देख लीजिएगा. दिस इज अ वर्ड. जो आपने डिसाइड किया है ना, उस पर स्टिक करिए. कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स लर्न बाय मेमोराइजिंग विद रिपीटेड एक्सपोजर ओनली. OTS, opportunity to see. How many opportunities to see your brand and your message can you provide? Larger the number of opportunities, greater will be your market share. ये रूल है मार्केटिंग का. स्टिक टू इटिवनेस पे चलिए. स्टिक टू इट. यही करते रहिए. जो आपने डिसाइड किया है उसको ब्रांड करिए, उसके पैकेजेस बनाइए. कीप रिपीटिंग. नेवर थिंक दैट रिपीटेशन इज इनफ. क्लाइंट बोर हो जाएगी, यार तुम बार बार ये क्यों कहते हो. अभी आपको जब तक याद नहीं हो जाएगा ना, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं बोलता रहूंगा. ऐसा बोल दो. एक और बात करना चाहूंगा, दैट बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, अरे हमारा नेम चेंज में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे करेंगे, व्हाट विल हैपन, हु सेड टू टेल मी, ये वो सब. मैं सोचता हूँ उसका एक सिल्वर लाइनिंग बहुत बढ़िया है. इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी. अगर किसी ने मेरे को कहा होता अगर अपना नाम चूज करो ना, मैं आशुतोष नाम कभी चूज नहीं करता. इतना डिफिकल्ट है बाबा, लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. और विष्णु योग्स के ऊपर से, मतलब पीपल गेट कंफ्यूज कि नाम क्या है इसका. यार मैं एक सिंपल सा राहुल वर्मा ऐसा नाम चूज कर लेता. करेक्ट नो. आपको चॉइस दी जा रही है. ये चॉइस तो आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दी थी कि नाम चूज कर लीजिए. चूज द बेस्ट नेम दैट यू कैन फाइंड. नो, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि चेंज करना पड़ेगा. ऐसा सोचिए कि चॉइस मिल रहा है, लेजिटिमेटली चॉइस दे रहे हैं आपको. 76% ऑफ द पीपल, ये पोल किया था अबाउट पीपल्स ओन नेम्स. 76%, ये रीडर्स डाइजेस्ट का पोल था. 76% ऑफ द पीपल प्रेफर्ड अनदर नेम, नॉट देयर ओन नेम. उनको लगता है हमारा क्या बेकार सा गंदा सा नाम का मेरे पेरेंट्स ने रख दिया. यार मेरे को नाम मिलता तो मैं अपने आप को एलोन मस्क कहता ना, करेक्ट, बिल गेट्स कहता. मैं क्यों अपने आप को आशुतोष विष्णु कहता. दैट अपॉर्चुनिटी इज कम टू यू. डोंट थ्रो इट अवे थिंकिंग कि ये तो जबरदस्ती हो रहा है. यार इंप्रूव करिए ना. आपने जब बिजनेस शुरू किया था, आपने एक नाम रखा था. आपको भी लगता होगा कि यार आई विश माई नेम वॉज स्लाइटली डिफरेंट नाउ, क्योंकि इतने साल धंधा करने के बाद समझ में आता है कि बिजनेस में कैसा नाम अच्छा लगता है. दिस इज योर चांस टू डू बेटर. उसके क्या अप्रोचेस हैं, ये ब्रांडिंग की सिंपल रूल्स हैं. योर ओन नेम इज मोस्ट कॉमन. बेस्ट नोन फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड्स इन द वर्ल्ड स्टार्टेड विद ओन नेम, बिकॉज उसमें इंस्टेंट ट्रस्ट डेवलप होता है. आशुतोष बिश्नोई एंड एसोसिएट्स का नाम होगा तो क्लाइंट बोलेगा मैं जानता हूँ, ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना नाम डाला है इसने. राइट, दैट इज एट अ बेसिक लेवल, बट बहुत लोग यूज करते हैं, देयरफॉर इज वेरी कॉमनली यूज्ड. ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम किसी दूसरे के नाम से सिमिलर हो, तो मेरा तो यूनिक सा लगता है थोड़ा, लेकिन अगर राहुल वर्मा रहेगा तो कम से कम 50 खड़े हो जाएंगे. करेक्ट. तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि क्या नाम रखना है. इट कुड बी एन एक्रोनिम ऑफ पार्टनर्स नेम. कार्वी नाम कहाँ से आया आपको लगता है? ऑफ कोर्स द नेम हैज सम इश्यूज टुडे, बट कहाँ से आया वो नाम? तो 5 उसके पार्टनर्स थे, उनके इनिशियल से कार्वी बनाया. दिस वाज नॉट ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर द फ्लावर कॉल्ड कार्वी. Oh, shit. Yeah. There are 5, all these 5 people. I was involved in the process, so I know कि कैसे वो नाम बनाया. Okay. जेएम का नाम जमुना दास मोरारजी हुआ करता था, उसको जेएम किया. डीएसपी, डी दयाल सन्स प्रभुदास, ये नाम था, उसको डीएसपी किया. तो लोगों ने एक्रोनिम्स बनाए हैं. एक्रोनिम्स समटाइम्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अच्छा सा एक एक्रोनिम बना सकते हैं लोग. अमेरिकन्स आर वेरी गुड एट एक्रोनिम्स, बट आपको भी ट्राई करना चाहिए. फिर बेनिफिट ओरिएंटेशन में नाम बना सकते हैं. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स. इंडियाज लार्जेस्ट लिस्टेड एंटिटी हैज अ बेनिफिट ओरिएंटेशन. नो, रिलायंस, वो किसी का नाम नहीं है, वो अंबानी एंटरप्राइजेस नहीं है,
रिलायंस नाम लिया उसने कि भाई हमको एक बेनिफिट देना है लोगों को कि वो हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, राइट? सो दीज नेम्स वर्क. कन्विक्शन अपवर्डली नाम की कंपनी है, आई मेट देम रिसेंटली. वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. इन्वेस्ट टाइम, यू कैन गो इनटू इंडियन लैंग्वेजेस. शुभ काम. मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़माना हुआ 1989 में, व्हेन बैंक ऑफ अमेरिका लॉन्च दिस एनआरआई बिजनेस इन इंडिया. तब किया करते थे एनआरआई बिजनेस रिटेल ब्रांडिंग में. आई गेव देम अ नेम कॉल्ड शुभ लाभ मनी मैनेजर्स. इट वाज सच अ हिट. तो 1989 में अमेरिका और यूके और सिंगापुर में जो इंडियंस रहते थे, जो उस जमाने में बहुत कम संख्या में होते थे, वो अपने आप दौड़ के आते थे. जब उनको शुभ शुभ लाभ नाम दिखा तो दौड़ के आते थे. ब्रांडिंग वर्क ब्यूटीफुली फॉर बैंक ऑफ अमेरिका. आप लोकेशन का नाम ले सकते हैं. पूना डिस्ट्रीब्यूटर्स, बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सैंटा क्रूज डिस्ट्रीब्यूटर्स. यू कैन पिक एनी नेम. यू कैन कॉल योरसेल्फ पेरिस डिस्ट्रीब्यूटर्स. मैंने देखा अभी ये ये बिल्डर्स आजकल ये बहुत करने लगे हैं. वो बांद्रा कुर्ला में उन्होंने पेरिस बनाया हुआ है. वो परेल परेल ईस्ट में उन्होंने कफ परेड बनाया हुआ है. तो यू कैन पिक एनी लोकेशन एंड से आई विल बी दैट लोकेशन. आप दुनिया की एक एसोटेरिक लोकेशन पिक करिए, यानी करिए कि आई विल बी नोन बाय दैट नेम. कौन चैलेंज करेगा आपको? कुछ लोग रिलीजियस और मिथिकल में भी जाते हैं. उसमें खाली एक बात याद रखिएगा कि पीपल हु डोंट फॉलो दैट मिथ एंड हु डोंट फॉलो दैट रिलीजन मे नॉट कम टू यू इजीली. तो वो जरा उसमें लिमिटेशन हो जाता है. बट नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग मिथिकल एंड रिलीजियस नेम्स. एकदम एसोटेरिक. और मुझे ये तो बहुत पसंद है. मैंने आपको ये बताया सनशाइन, समर शाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स. उसमें एक होप और प्रॉमिस भी है उस नाम में. स्प्रिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसमें भी एक होप और नेम है. फिर कुछ लोग टेक ड्रिवन नेम्स दे लाइक टेक्ट्रॉनिक्स, मैक्रॉन. आप कोई भी एक ऐसा नाम निकाल सकते हैं. तमाम सारे ऑप्शंस हैं. थिंक ऑफ व्हाट विल वर्क फॉर यू बेटर. आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी. उसको उसके बारे में करना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे अपॉर्चुनिटी जैसा सोचेंगे. इफ यू थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू विल डू वेल. So this is all I had to share in terms of slides, Prem, in terms of. Yeah, fantastic. We've covered a lot of ground. And आशुतोष, ये देख के सब मालूम पड़ रहा है कि आपका तजुर्बा कितना जमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी आपने चीजें बात करी हम लोग सब उसको रिलेट कर सकते थे. ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी. लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको कि आपके प्रेजेंटेशन देख के बाद में मुझे थोड़ा सा लगता है कि कुछ चीजों पे हम लोग को और बात करना चाहिए. पहली बात, ब्रांड और रेपुटेशन में क्या फर्क है? So reputation is a general idea or a collection of things that people. 1 minute, let me stop the screen sharing. वो है जो कि reputation is about what people speak about you. Yes. What people Okay. say about you. It is public discussion about yourself. Okay. Brand वो है जो कि उनके माइंड में एक आइडिया बना हुआ है vis-a-vis Yeah. somebody else. Okay. Okay, brand is a unique brand is limited to business vis-a-vis other brands. Okay, so Pepsi की reputation है कि they are meant for young people, or they are a large selling drink. They are maybe they are world leaders in the world number 2. लेकिन उनका brand is that they are a new generation choice. Okay. 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 So Great. reputation in some way is slightly larger than brand. Okay. Great. अच्छा, दूसरा चीज आशुतोष, अभी आपने हिंट किया था इस चीज पे कि आपको एक बार फिर से अपने आप को रीब्रांड रीइन्वेंट करने का मौका मिल रहा है, और आपने बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी बताए थे. लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये है कि पहले ये जो इंडिविजुअल से जिनको भी हम लोग एमएफडी कहते हैं, पहले इनको आईएफए कहा जाता था. अब सभी ने बोल दिया कि भाई आप अपने आप को आईएफए नहीं कह सकते. लेकिन आपको क्या लगता है कि इस चेंज की वजह से पब्लिक का परसेप्शन टुवर्ड्स एमएफडी विल बी डिफरेंट? इस आईएफए, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसमें एडवाइजर वर्ड है, इसकी वजह से क्या लोग बाग ज्यादा भरोसा करते थे पहले और अब शायद भरोसा कम करेंगे? आपकी क्या राय है? No, I don't believe that is going to happen, because Okay. there are two reasons. One is that I do not believe that
trade terms like IFAs or MFDs are relevant to the distributor, to the client. ओके मैं नहीं समझता हूँ कि किसी क्लाइंट ने ऐसा सोचा होगा कि अरे ये तो एडवाइजर नहीं रहा, ओके उसको पहले भी मालूम नहीं था कि आप एडवाइजर हैं कि नहीं है। उसको तो ये ओके मालूम है कि भाई प्रेम खत्री आते हैं, उनसे बात ओके करके हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके आई डोंट थिंक इट इज दीज आर ट्रेड टर्म्स, और हमारा ओके छोटा ट्रेड है। वी आर ओनली 200,000 पीपल इन दिस ट्रेड टोटली, राइट? ओके ओके Relatively small. ठीक Outsiders don't know about these terms. तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने में की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, मैं आई यूज्ड टू रन यूटीआई, राइट? राइट ऑल देम एजेंट्स, करेक्ट? यस ऑफ कोर्स तो आई एजेंट से आईएफए बन गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके आई हैड 500,000 एजेंट्स, तो nobody, it didn't make any difference really in people's perception, because people focus कि मुझे क्या बेनिफिट चाहिए इस आदमी से और इस एंटिटी से, और मुझे क्या मिल रहा है। ओके They are focused on that. They are not focused on कि आपका बिजनेस डिस्क्रिप्टर क्या है, आपका ब्रांड क्या है। यस, ओके आपने क्या प्रॉमिस किया है वो ब्रांड में, आपने क्या सर्विस लेवल एफिशिएंसी किया है उस ब्रांड में, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर इन दैट ब्रांड, दैट मैटर्स। लेकिन नाइकी के जूते को क्या कहते हैं? डू यू कॉल इट क्रॉस ट्रेनर्स, डू यू कॉल देम स्नीकर्स, डू यू कॉल देम स्पोर्ट्स शूज, इट डजंट मैटर। उसका डिस्क्रिप्टर क्या है, इट डजंट मैटर, इट इज नाइकी, राइट? ओके ओके ठीक है चलिए तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी की आपको आईएफए बुलाया जा रहा है या एमएफडी या एजेंट या क्या, इतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे अगर कोई एमएफडी है और वो जानना चाहता है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है रेपुटेशन के, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं रेपुटेशन के? So the number one is, okay, there are building blocks and there are steps. So the building block is you have to decide what you want to say about yourself. ओके What do you stand for? Will you stand for service efficiency? Will you stand for better solutions? Will you stand for better insight into consumers' mind? What will you stand for? ओके I know that a lot of distributors focus on efficiency because that is the differentiator. कि जी हाँ फटाफट काम हो जाता है, जी हाँ right? एक बात आपको कहना चाहूंगा, when you think of that particular element कि what do you stand for, no? There is a very simple reality of human life that human beings are irrational. हम लोग rational decisions justify कर लेते हैं। जी हाँ का जूता हम 10,000 रुपए में खरीद लेते हैं and we think we did a very logical decision. जी हाँ जी हाँ We know that it's not logical, जी हाँ right? So if you build about yourself a differentiator that is irrational, which is जी हाँ emotional, ओके you will do well. So find that emotional hook that you can do well with, that you can deliver on. It's very important. So that's the first piece. Second piece is create enough material about it. यानी कि अगर आप कहेंगे कि suppose you say that I am a more efficient distributor, जी हाँ you should create enough lines, enough written material how you are more efficient. जी हाँ You're more efficient on the phone, you're more efficient on WhatsApp, you're more efficient on email, you're more efficient in physical terms, all that. चार अलग अलग चीजें बनाइए, train your people to deliver on it. क्योंकि आप क्लेम कर लेंगे लेकिन वो डिलीवरी नहीं होगा तो आपका ब्रांड विल फॉल फ्लैट। जी हाँ जी हाँ तो एंड द फोर्थ थिंग इज कम्युनिकेट लाइक हेल, मतलब ओके कम्युनिकेशन करते ही जाइए, बिकॉज ओनली देन पीपल विल बिगिन टू रिकॉग्नाइज। पहली 10 दफा तो लोगों को याद भी नहीं रहेगा आपने कुछ भेजा था, जी करेक्ट? हाँ जी हाँ यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू कीप एट इट, स्टिक टू इटिवनेस जरूरी है। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके प्रायर टू डिफाइनिंग हु यू आर, थोड़ा सा एक सर्वे जैसे मैंने कहा ना करिए, कि फाइंड आउट फ्रॉम पीपल हु आर नॉट योर फ्रेंड्स जी हाँ व्हाट इज योर रियल रेपुटेशन, उसमें जी क्या हाँ खामियां हैं, क्या व्हाट इज रिमेनिंग दैट यू नीड टू, और यू मे आल्सो गेट फ्रॉम देम दोज इनसाइट्स व्हिच योर फ्रेंड्स कांट गिव यू। ओके व्हाट इज यूनिक, जैसे कि जिस जिस आदमी ने लिखा था कि आई हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, somebody else told him, friends never told him because friends को तो आदत थी रोज जोक मारता है, but somebody else told him कि भैया this is nice, you're very easy going and you have a very great sense of humor। तब उसको लगा कि अरे यार मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं।
I have a great sense of humor. That's a unique differentiation. Hmm. उसने इतना बड़ा अभी एक फाइल बना लिया है ऑफ जोक्स, वो याद रखता है जोक्स, उसके व्हाट्सएप में उसने और उसके फोन में नोट्स में लिखे रहते हैं कुछ 50 जोक, for every occasion he's got one line. So this is not a mythical character. This is someone you know personally. Yeah, absolutely. Okay, great. ठीक है. अच्छा, एक चीज है कि आपकी रेपुटेशन है, रेपुटेशन इन्फ्लुएंस होती है अबाउट व्हाट अदर्स से अबाउट यू. Okay, so how can we get others to believe in your particular brand, and not only to believe, but they kind of go about enhancing or amplifying your reputation. How does one do that? क्योंकि मैं अपने आप तो बोल सकता हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन है मेरा. एक तो अगर मैं खुद बोल रहा हूँ तो थोड़ा लोग बोलेंगे नहीं ये अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, तो थोड़ा डिस्काउंट तो होता ही है. लेकिन अगर आशुतोष बोलेगा मेरे बारे में तो लोग बोलेंगे हाँ आशुतोष बोल रहा है इसके बारे में, डेफिनेटली करेक्ट है. तो मैं कैसे लोगों को उकसाऊं या मोटिवेट करूं टू बी एबल टू टॉक, बिल्ड माय रेपुटेशन? Okay, so your first stop in that is your clients. मैं नहीं समझता, it is not very Indian thing to do to ask for a referral. हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग शर्मा जाते हैं. When somebody is very happy with your service, and which happens many times, I'm sure आपके business में surely 7 or 8 of your clients out of every 10 would be quite happy with you, and एक occasion हुआ होगा जब आपने उनके लिए एक अच्छा कोई डील किया होगा, and he would have also said कि हाँ ये अच्छा हुआ है, तुरंत आपको एक रेफरल मांगना चाहिए. Because there is nothing as dubious as a stale referral. पिछले साल remember I have done this good thing for you, so can you please recommend to your client, to your friend, वो नहीं चलता है. सर आपके लिए अभी मैंने एक अच्छा डील किया ना, आपको एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करके दो, people will introduce. So immediately पूछो. तुरंत. Immediacy of referral is the success of referral. मतलब you can get upwards of 50 to 60% hit rate if you ask for it immediately. बेशर्मी से पूछना चाहिए, because उस टाइम आदमी का मूड अलग होता है. 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो भूल भी जाता है कि आपने किया था. So that is the best way to start on getting people to forward your referral. Clients are the best way forward. उसके अलावा repetition through paid or unpaid media, continuous repetition, you will be surprised how much it works. And you've been part of this, so you know there is no alternative to doing. Only referral will not work. You should see in paid media. Paid media की एक बात बताऊं आपको. when I say paid, social media में भी paid होता है, जैसे कि WhatsApp for business है. लोग जानते हैं कि you are sending this message to them, you are making a claim or making a sale. लेकिन लोग डाउट नहीं करते हैं. They don't doubt your intention. They have tried you out. Okay, until they have tried you out, they feel कि अरे यार ये भेजता रहता है, उसका तो धंधा है. But that doesn't mean they think less of you. They don't think कि ये बेकार आदमी है, क्यों भेजता रहता है. They think इसका काम है, ये कर रहा है. And when they ever engage with you and ever experience your brand is when they find out whether कि आप जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं. That is why I'm saying कि वो behavior जरूरी है. Stick to it. आपने जो प्रॉमिस किया है वो करिए. या तो उसका एक अलग सोचने का ढंग है कि उतना ही प्रॉमिस करिए जितना हो सकता है. So that you will always be on the better side of the experience. कभी भी आदमी को अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके ब्रांड से, he will be happy to. Okay. Ashutosh, I wanted to ask you, what are the do's and don'ts of being on social media? Today, clearly, that has become a very powerful this thing. Like you rightly said, that earlier people did not have access to media, but today you have access to WhatsApp, and you are as powerful. Your voice can be heard. You can make yourself heard. Absolutely. सही कहा आपने प्रेम. Social media is a very powerful tools, and there are many platforms available now. The first thing is, if you are really serious about building a brand, on every powerful platform, you should have a handle or presence. Your content should be available from every social medium that is available or is being seen by your clients or prospects. Okay. ज़्यादा लंबी लिस्ट भी नहीं है. आती होंगे.
ऑल द मोस्ट ऑब्वियस वन, बट वो जरूरी है कि आप उस पे हों। सेकेंड थिंग इज विच आई फाइंड इनएक्सक्यूजेबल, बहुत से लोग शुरू कर लेते हैं, डोंट कंटिन्यू। तो मैंने कई दफा, मैं सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, मैंने वेबसाइट्स में देखा है विच गेट डेटेड, यहाँ तक कि उसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो 1 साल पुराना है। इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड प्लेटफॉर्म, डेटा अगर रिफ्रेश नहीं होगा, it will leave a very very poor impression on the person who happens to come there. मुझे लगेगा यार ये तो अपने ब्रांड की चिंता नहीं करते हैं, मेरी क्या चिंता करते हैं। ओके ओके, select 5 or 6 platforms and be at it. It doesn't mean आपको रोज करना है, decide a frequency, आपसे रोज नहीं होगा, हफ्ते में एक बार हफ्ते में हर हफ्ते करिए फिर। So that is a important thing. I know several MFDs who have taken to writing columns in their regional newspapers. Yes. महीने में एक बार करते हैं, and then define, मतलब वहां से लेके फिर वो सब जगह व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह उनका जाता है, इंस्टाग्राम पे। that particular piece they don't let it die for 7 days. Okay. वो पुश करते रहते हैं साथ में। तो एक ही कंटेंट आप अलग अलग मीडिया में पुश करिए ताकि वो एम्पलीफाई हो जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन कई लोग स्ट्रगल करते हैं आशुतोष, ये सोशल मीडिया एक बीस्ट है व्हिच हैज टू बी फेड रेगुलरली। आपने कहा महीने में कम से कम एक बार तो कोशिश करिए कि एक बार हो जाए। आप कुछ टिप्स देना पसंद करेंगे कि कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाए? वो मैं बाद में बोलूंगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज टू फॉलो मेनी पीपल सो दैट यू आल्सो गेट मनी फॉलोअर्स। ओके, इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे लोगों को तो आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। तो फाइंड पीपल टू फॉलो और बिकम फ्रेंड्स विद एंड कीप इंक्रीजिंग द रैपिडली इंक्रीजिंग द नंबर टू अ वेरी हाई नंबर। ओनली देन यू विल फाइंड फॉलोअर्स फॉर योरसेल्फ। तो जब ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे फिर उनके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल कनेक्ट में आपको और ज्यादा एम्प्लीफिकेशन मिलेगा आपकी मैसेज का। ये ऑटोमेटिक है। तो लोग कई दफा गलती करते हैं, सोचते हैं कि मेरा तो सिर्फ ये 50 लोगों से काम है, वो सब मेरे फॉलोअर्स हो गया अपना काम। उससे नहीं चलता है। यू मस्ट फॉलो मेनी मोर पीपल एंड इन टर्न यू विल फाइंड मोर फॉलोअर्स। वो ऐसे ही चलता है, वो सर्कल वैसे ही चलता है। तो टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, जो आपने पूछा कि कैसी कंटेंट बनानी चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये एक सिंपल चीज में इन्वेस्ट कीजिए कि आपका जो फोन है उसका एक स्टैंड खरीदिए। कभी कभी वो छोटा भी होता है, कभी ऊंचा वाला भी मिलता है, राइट? सो दैट द फोन कैन बी हेल्ड इन दैट स्टैंड। उसे थोड़े डिस्टेंस पे रखिए एंड स्टार्ट शूटिंग वीडियोस ऑफ योरसेल्फ। हर मीडियम का एक लेंथ होता है, जैसे कि यूट्यूब की लेंथ आप काफ़ी लंबी कर सकते हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप में भेजना है तो यू शुड नॉट डू मैसेजेस मोर देन 1 to 2 minutes। एक तो आपके पास टाइम नहीं होता है, दूसरा व्हाट्सएप डज नॉट परमिट इजीली ट्रांसमिशन बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। तो ट्विटर में सेम, क्योंकि ट्विटर इज अ सोशल हैंडल वेयर पीपल लुक फॉर बज। उसमें आप बहुत लंबी कहानी नहीं कह सकते हैं। लंबी कहानी कहने के लिए ऑन ट्विटर यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली वाइडली फॉलो। मिलियंस ऑफ लोग अगर आपको फॉलो करेंगे तो आपका पूरा वीडियो देख भी लेंगे, बट you may not have that luxury today. So send messages or forward messages, that's the third part. ये मत सोचिए कि आप ही को सब कुछ लिखना है। You must find other very interesting, which is why followership matters. अगर आप 1000 लोग ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो कि वर्ल्ड लीडर्स हैं अपने डोमेन में, आपको 1000 कंटेंट्स मिलेंगी जो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट्स को। 1000 में से 4-5 तो मिलेंगी जो आपके क्लाइंट को रेलेवेंट लगेगी। तो डोंट मेक इट ओनली अबाउट योरसेल्फ कि आप ही को लिखना है सब। तो दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम यू नीड टू फॉलो। सब कुछ अपने आप मत बनाइए, लेकिन कम से कम महीने में 1-2 दफा अपना वीडियो जरूर भेजिए। लॉट ऑफ पीपल डू इट ऑन अ वीकली बेसिस क्वाइट सक्सेसफुली। So these are the various content strategies. Got it. आपको कोई एप्लॉय करना है किसके लिए। हाँ, लेकिन एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि हर एक मीडिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसकी वो बारीकियां हमको समझने के लिए जरूरी है। आपने बताया कि YouTube में कंटेंट वीडियो लंबा हो सकता है, और आपने कहा कि WhatsApp में आप छोटा रखिए, ट्विटर का में कुछ ज्यादा न्यूज़ी, कुछ ज्यादा पंची होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने।
एक जो पॉइंट आपने पहले हिंट किया था, मैं उस पर वापस आना चाहता हूँ. ट्रेडिशनली लोगों ने अपना रेपुटेशन बनाया है बाय यूजिंग व्हाट वी कॉल ट्रेडिशनल मीडिया, विच इज न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखते हैं, टीवी पे अपीयर करते हैं. तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इसमें कैसे लोग, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने अपनी रेपुटेशन काफी एनहांस की है. कई लोग हैं जो कि आज इनफैक्ट हाउस होल्ड नेम्स हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे गौरव मशरू वाला. उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लगभग शायद जानते भी नहीं थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है. तो आज के जमाने में क्या ऐसा करना चाहिए, और अगर करना है तो कितना मुश्किल है या आसान है, इस पे आप कुछ. So I'll tell you, I've been associated very closely in my advertising career with public relations, जहाँ की ट्रेडिशनल मीडिया का यूज बहुत सारी कंपनीज करती हैं. दे यूज ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट, टेलीविजन, खासतौर से रेडियो भी यूज किया जाता है कई दफ़ा आजकल. सो उसमें क्या है कि एक तो ये बात है कि यू हैव टू बी क्रेडिबल टू द मीडिया राइटर. ओके. तो आप अपने एरिया में ये पता करिए कि आपके क्लाइंट्स में या क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स में या आपके फ्रेंड सर्कल्स में who are people who are writing in mediums, who are writing in a newspaper, who are journalists in a news channel. एक बात बताऊंगा, एक खास बात बताऊंगा कि इन लोगों के पास टाइम कम होता है और इन लोगों के पास ऑलवेज जगह होती है ऐसी न्यूज़ की जो कि न्यूज़ की सर्च में घूमते रहते हैं लोग. आपने देखा होगा कितनी फाइट होती है ना. अभी वो पूरा एक कंट्रोवर्सी भी चालू है कि किसका कितना टीआरपी है, क्योंकि इनको चाहिए होता है न्यूज़ ब्रेकिंग, which is hot, which is interesting, which will make a difference to the viewer. Being from the financial market, there is no dearth in our domain of such news, correct? हमारे यहाँ तो रोज सुबह से शाम तक इतना मार्केट उठता गिरता है, क्या क्या भी होता है, करेक्ट? एंड मेनी ऑफ अस हैव अ प्रीटी गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है. इसी को लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो यू मे बी एबल टू फाइंड लोकली 2 or 3 people who are interested in writing or taking you to a channel. ये आप बात करिए. तो कई चैनल्स में एक फॉर्मेट अभी स्लोली डेवलप हो रहा है कि they have started readers or viewers queries about investments. Correct. That is a very good area to develop. You as a distributor can go up there and talk about कि इसमें क्या है, इसका क्या है. लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा ये एफडी था, मेरा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था, मैंने में ये किया था. तो you can, if you can start resolving that on channel or on radio. रेडियो लोकल होता है, आप रेडियो स्टेशन को आइडिया दीजिए कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ. इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर देम. ये आइडिया प्रिंट में भी अवेलेबल है एंड प्रिंट वाले भी चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया प्रिंट करते रहें फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर फाइनेंशियल न्यूज़ कैरी करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ता है. तो ये बात लेकिन कनेक्शन के थ्रू होती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पीपल कि आपके एरिया का कौन है राइटर्स, जर्नलिस्ट, न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट, जिसके साथ आप बात करके एक तरह से आपको इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंटेंट का. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू गो ऑन दीज चैनल्स इन पब्लिक मीडिया, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक साइड्स. आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं. दे मे अलाउ यू समटाइम्स टू टॉक अबाउट योरसेल्व्स. सो प्लीज आस्क कि क्या मैं अपने बारे में 1 मिनट बात कर सकता हूँ कि मैं ये करता हूँ, ये कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज सीन एज एडवर्टाइजिंग. और जो एडिटोरियल स्पेस है वो लोग बहुत खास इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई लोग अपने आप को पुश ना करें. यू शुड नॉट बी सेइंग नाउ यू कम टू माय सो एंड सो ऑफिस एंड टॉक टू मी. वो नहीं चलेगा. क्या चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करने को तैयार हूँ. यू आर सीइंग माय फेस, यू आर सीइंग माय नेम, मे बी द नेम ऑफ माय कंपनी आल्सो, सो यू नो आई एम अ रिलायबल पर्सन. यू कैन. ये बेनिफिट जो है, जो कि एडिटोरियल स्टांस आपके हेलो आपके ऊपर आता है, दैट इज वेरी पावरफुल, मच मोर पावरफुल देन एनी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग यू कैन डू. जैसे आपने कहा कि लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं तो वो तो पेड ही होगा, आपका तो काम है करना, तो आप कर रहे हैं.
लेकिन when you become part of the editorial team to give advice or solve problems, then the halo behind your head is very very powerful. वो ट्रस्ट लेवल बहुत डिफरेंट होता है, पर उसमें ब्रेक थ्रू करना, उसमें टाइम लग सकता है, उसमें एक Yeah. रिलेशन चाहिए, उसमें कनेक्शंस चाहिए कि आप कैसे उसमें जा सकें. बट दे आर अवेलेबल, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. या फैंटास्टिक. इसमें ओके. आशुतोष, अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि ऐसी क्या 5 चीजें, चाहे आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आप छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपके पास में रिसोर्सेज हो ना हो, ऐसी 5 चीजें क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिससे कि उनकी रेपुटेशन की एक अच्छी बुनियाद बन सकती है? तो थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा. हाँ. नंबर 1, कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह का बिजनेस या किस तरह का प्रॉमिस क्लाइंट को करेंगे. उसे क्रिस्टलाइज करिए, उसे लिखिए. क्यों, जैसे आपको बताऊं कि मैं एक उडुपी रेस्टोरेंट में गया था, मेरे घर से बहुत दूर नहीं है. वहाँ एक सिंपल सा एक बोर्ड लगा था. वो बोर्ड पे लिखा था, द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट ईट्स हियर. दैट टोल्ड मी द फिलॉसफी. मैं वहाँ जाना, छोटा रेस्टोरेंट है, बहुत कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है. मतलब क्लास 3 ईटिंग हाउस कहलाता है ना इंडिया में, वो है उडुपी. आई लाइक टू गो देयर बिकॉज मुझे एक कंफर्ट है कि यार यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, की क्वालिटी सही रहेगी. सो आई एम सेइंग, उसने अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट रख दिया. आप कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखिए अपने बारे में दैट यू विल होल्ड अप टू, जो कि आपका अपने आप को, अपने क्लाइंट को प्रॉमिस है कि मैं इसके लिए. सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू डू. लोग करते हैं लेकिन लिखना भूल जाते हैं. lot of people do that. I have met so many distributor friends who tell me how they are so devoted to this interest, that kind of particular specialization. लेकिन लिखते नहीं है उसके बारे में. They don't reduce it to one sentence. वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बारी वो सेंटेंस आ गया ना, फिर उस सेंटेंस की मार्केटिंग आप कर सकते हैं. लोगों को आप पूरी कहानी सुनाएंगे, वो मुश्किल है. लोग खड़े नहीं रहेंगे कि आपकी पूरी कहानी सुनने के लिए. लेकिन रिड्यूस इट टू अ सेंटेंस, मेक इट मार्केटेबल. ये दूसरी बात है कि एक फर्स्ट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट यू आर मेकिंग, उसे क्रिस्टलाइज करिए, फिर उसे पॉपुलराइज करिए. यूज एवरी कंसीवेबल मीडियम टू पॉपुलराइज इट. जिससे भी मिले, किसी काम के लिए भी मिले, पहले ये बोल दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ. फिर बाद में जो कुछ बाकी काम करेंगे, बाकी बात करेंगे. डोंट हिचकिए मत, बिकॉज बेशर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस. बेशर्म होके बता दीजिए कि मैं ये करता हूँ. दैट इज द थर्ड थिंग. डू नॉट थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू हैव अ बेटर सर्विस, that you have a better satisfied client base, that others will come to you automatically. So that is the fourth thing, is to make sure कि आपके जो लोग हैं, आप खुद वही डिलीवर करें जो प्रॉमिस किया है. और अगर नहीं होता है डिलीवर, द फर्स्ट वन टू गो टू योर क्लाइंट एंड से, साहब मैंने बोला था, मेरे से नहीं होता है. आपको दूसरा कोई मिलता होगा, उससे करवा लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा इस बारी. People may not like it because you may leave them in a lurch, but they will appreciate your honesty. They will trust you more. ये मुश्किल होता है, लेकिन you have to do this because you have to keep the client interest and your reputation in mind कि मैंने प्रॉमिस किया था, मुझसे नहीं हो रहा है. So let me go back and say कि नहीं होता है. And the fifth thing is that stick to it. आपने एक बार ये डिसाइड किया, उसको करते जाइए बार बार. बहुत मुश्किल आती है उसमें, बहुत ऐसा बार बार ही लगता है कि यार अच्छा चलो ना यार, एक ये सपोज आपने डिसाइड किया कि जैसे मैं बहुत लोगों को मिला हूँ, वो एनएफओ नहीं बेचते. तो मैं मिलता हूँ उनसे, हम तो, हमारी तो नई कंपनी है, एनएफओ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. लेकिन आई रिस्पेक्ट देयर व्यू. जब जिस दिन मुझे बोल देते हैं कि हम एनएफओ नहीं करेंगे ना, तो मैं और ज़्यादा बात करता हूँ उनके साथ. सर अब आपका एनएफओ है, आप वो दूसरों से बात नहीं करते हैं इतना. मैं बोला यार बॉस, आप मुझे सही बताएंगे, क्योंकि आप तो मेरा बेच भी नहीं रहे. You will tell me what my real problem is. तो अब वो नहीं करते एनएफओ, then don't do it. अब आशुतोष की बातों में आके उसका एनएफओ मत करिए, उससे विचलित मत होइए. Don't change your line just because आशुतोष has become a good friend. फ्रेंडशिप अपनी जगह है, but keep your business principle the same. People will learn to rely on it. वो रिलायबिलिटी ऐसे ही बिल्ड होती है.
है ना, लकीर का फकीर, पर पहले लकीर ड्रॉ करिए, लोगों को दिखाइए वो लकीर कि ये मेरी लकीर है, फिर उसे फॉलो करिए। दीज आर द वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स। इतना डिफिकल्ट नहीं होता इसे फॉलो करना, इफ यू हैव डिसाइडेड कि ये करना है। रेस्ट इज ऑफ कोर्स, ब्रांड बिल्डिंग इज ऑलवेज एन एंडलेस प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि रेपुटेशन बनती है नैरो एक्सपर्टीज के साथ कि ब्रॉड एक्सपर्टीज के साथ? कि मतलब अगर मैं एडवाइजर हूं, मैं अपने आप को रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट बोल सकता हूं, मैं अपने आप को डेट स्पेशलिस्ट बोल सकता हूं, और शुड आई ट्राई टू बी मास्टर ऑफ ऑडिट्स? क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग बहुत टेम्प्ट होते हैं, हर एक कॉन्वर्सेशन में वो आने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज में अपनी एक्सपर्टीज स्टैब्लिश करने की। तो नैरो हो या ब्रॉड बेस्ड हो, आपको क्या लगता है क्या ठीक रहेगा? या फिर किसी स्टेज पे डिपेंड करता है कि इनिशियली आप अपने आप को नैरोली डिफाइन करिए एज यू ग्रो? क्या आपकी क्या विचार है इसके बारे में? डिफिकल्ट वन, बट मैं कोशिश करूंगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप सारी लाइफ एक ही सेगमेंट में काम करें, जी हाँ। particularly if that segment is something like equity, तो वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। जी हाँ। But temptation will always be there. It depends on your assessment of the resource. याद रखिए, अगर आपने एक कमिटमेंट दिया है किसी को, सपोज आपने एक ऐसा कमिटमेंट लिया है कि सर्विस लेवल विल बी वेरी फास्ट इन माय बिजनेस। जी हाँ। अभी आपके पास 2 या 3 आदमी हैं, अभी वो इक्विटी का बिजनेस समझते हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी का बिजनेस समझते हैं, तो वो कर रहे हैं। अब सडनली आपको लगता है कि यार अभी डेट में बहुत पैसा बनने वाला है, मैं वो भी करता हूँ, तो क्या होगा कि आपके रिसोर्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी डिलीवरी विल फॉल डाउन। यू हैव टू मेक एन असेसमेंट कि अगर मैं ये करने वाला हूँ, कैन आई मैनेज एन एडिशनल रिसोर्सेस। ये मत सोचिएगा कि अगर 4 आदमी इतना काम कर रहे हैं, ये चारों कर लेंगे, किसी तरह तो चला लेंगे। द मोमेंट दैट हैपन्स, यू हैव डेंटेड योर ब्रांड। वो कहीं ना कहीं इट विल गेट ब्रूज्ड, डिलीवरी में, नहीं तो प्रॉमिस में, नहीं तो कहीं ना कहीं वो कम कम पड़ जाएगा, क्योंकि यू हैव नाउ लोडेड ऑन दैट कार्ड मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। तो अगर आपको ज़्यादा करना भी है, कीप द रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन माइंड। रिसोर्स मीन्स कैपिटल कितना है, कितने लोगों को आप और एम्प्लॉय कर सकते हैं, कितने बड़े ऑफिस की ज़्यादा ज़रूरत है, कितना मार्केटिंग और लगेगा इस बिजनेस को पूरा बनाने में। तो वो सोच के चलिए, वन ऑफ के बेसिस पे मत जाइए, क्योंकि उसमें कोई मज़ा नहीं है। वन ऑफ बेसिस पे आप थोड़ा सा पैसा कहीं किसी दूसरे मार्केट से बना सकते हैं, बट दैट इज़ अ वन ऑफ। एक दफ़े उसमें घुसे हैं तो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने को लगेगा, उसमें कितने कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि क्लियरली इन इंडिया डेट में जो कस्टमर्स आते हैं और जो इक्विटी में कस्टमर आते हैं उसमें फ़र्क है, और उनके उनके कस्टमर एक्विजिशन रेट में फ़र्क है, उनके एंगेजमेंट में फ़र्क है, उनकी प्रोफाइल और एटीट्यूड में फ़र्क है। तो उतनी जल्दी नहीं आते होंगे डेट में, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग होते हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि आपने 4 आदमी ले लिए, फिर उतना बिजनेस नहीं मिल रहा है। सो रिसोर्सेबिलिटी एंड द आउटकम्स को अच्छी तरह एवेल्युएट करके आप एक्सपैंड करें। अगर शुरू से आपको इंटरेस्ट दोनों में है, फिर क्या है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स लिमिटेड हो जाएंगे, तो एक मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि एज यू डेवलप योर बिजनेस एंड इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल, इट इज़ गुड टू ऐड मोर लाइन्स। उसका ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर डजंट हैव टू गो टू मेनी अदर प्लेसेस। कस्टमर वॉलेट शेयर कहलाता है कि कस्टमर के वॉलेट का कितना शेयर आपके पास है, जी हाँ। एंड दैट वॉलेट शेयर इज वर्थ एक्सपैंडिंग, बिकॉज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू फाइंड न्यू कस्टमर्स इन इंडिया। आप सोचते नहीं होंगे इस बारे में, लेकिन अगर अपना टाइम, अपने स्टाफ का टाइम, अपना मार्केटिंग कॉस्ट आप ऐड करेंगे, एवरी न्यू कस्टमर यू ऐड इज अ वेरी हाई कॉस्ट। उसी कस्टमर को 4 और चीज बेचना इज चीपर। तो इट इज अ वर्थवाइल गोल, लेकिन रिसोर्सेबिलिटी सोच के चलिएगा उसमें। ऐसा ना हो कि योर ब्रांड स्टार्ट्स टू सफर बिकॉज यू ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। So great, Ashutosh. I know that you have a board meeting straight away after this session. So thank you for being with us. You've really uh, uh, shared with us what are the building blocks. You've shared with us the process. You've given us many tips and your assurance on the fact that चाहे आप एजेंट कहलाएं, चाहे आप IFA कहलाएं, चाहे आप वेल्थ एडवाइजर कहलाएं,
चाहे आप MFD कहलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और and this is an opportunity. एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत सारे हमें हिंट्स दिए कि ये आप किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं अपने आप को रीब्रांड करने के लिए, एक तरीके से रीनेम करने के लिए। थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग विद अस, and I hope you enjoyed it as much as I did. So, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. चलो, bye everyone, all the best. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Bye bye. Bye.